Welcome, friends. Uh, a happy Dasara. I wish all of you a happy Dasara, a happy Durga Puja. A few days ago, our friend, Dr. Professor Sudhir, has given our two friends a task to explain time dilation. And we two were Satish Chandra and myself. But unfortunately, I fell ill. I was suffering from fever, cold and cough for at least 3 or 4 days. So I could not respond. But our friend, my dear friend Satish, responded very promptly, and he gave a clipping. The clipping was of a very high rate or very high quality, and I too could get some light from it. It was very high. It was of so high quality that our friend Sudhir awarded him millions of dollars. You know what is the value of dollar? We know $1 is equal to almost 80 rupees. And Sudhir awarded him 1 million. 1 million means 10 lakh, 10 lakh dollars. So at that time I was ill, but I became very much interested to say something about time dilation. He gave the task for explaining time dilation, as you see, time dilation. But Sudhir promptly gave the clipping, and very high quality clipping, and I congratulate, I thanks Satish for giving that clipping. I got also some light from it, but I was delayed. Sudhir is my friend, and as all of you know that his father was a very renowned physics teacher, Professor A.P. Srivastav, and he was my teacher also. I remained his discipline, and today I namaskar him, I give my naman wherever he may be. I bow to him, I salute him, my teacher, my guru. So whatever I have learned, it is his credit. Now, the time dilation, about time dilation, you might have seen the clipping, but here I will explain you in a very short time or in a very lucid way, as I was directed by Professor Sudhir, that explain it in a very lucid way. Time dilation. What is time dilation? First of all, I will say that the frame of reference. What is the frame of reference? Frame of reference, you must have the concept. Frame, as we are here on the surface of the earth, and one is going around on a aeroplane, going on an aeroplane. The frame of reference of aeroplane is different from the frame of the static earth. Now, some other person is going on a railway, on a train, then the frame of reference of train is different. So, you might have the clear conception of frame of reference. The frame of sun is different from the frame of earth is different, the frame of moon is different, frame of plane is different, frame of train is different, frame of static earth is different. So, here time dilation, what is time dilation? So, I will explain it in a very short period, but I have written it because to make it very compact. Let there is two frame of reference. There are two frame of reference. One is named S dash and the other S. One is S and the other is S dash. The S dash is moving.
S dash is moving with respect to S with a velocity v. With relative velocity v, S dash is moving with respect to S. Now, then two time incidents are recorded in S dash. In S dash, two time incidents are recorded. Two time incident, let it be, for example, to clear an example, one has fired some gun, one incident, and the bullet hit the target in other time. That is the second incident. The train started from this junction or from this station, first incident, and train reached the second station, that is the second incident. So, there are two incidents, and I have named that as T1 dash and T2 dash. It is in S dash. In S dash frame, we have named the two incidents as T1 dash and T2 dash. Two time recorded in each station. Then the interval of time will be simply the difference. The interval of time will be simply the difference of T1 and T2. So, and that difference I have denoted by delta T dash. The time difference is delta T dash, and the value of this will be simply T2 dash minus T1 dash, isn't it? Now, these two incidents in frame S, after applying the Lorentz transform, that is Lorentz transform, that is a big thing that cannot be explained here. I cannot explain here. It will take another more than half an hour to explain Lorentz transformation, or more than that. So, that is Lorentz transformation is some extra thing. So, applying Lorentz transformation, these two incidents as seen in the frame S. In frame S dash, it is delta T dash equal to T2 dash minus T1, but that two incidents are seen in frame S, and the Lorentz transformation has been applied. The Lorentz transformation has been applied, and then the value of T1, T2, what is T1 and T2? T1, T2 are the time instant in frame S. So, it is denoted by T1 and second is denoted as T2. But after applying Lorentz transformation, the T1 value T1 is equal to T1 dash Vx dash C square under root 1 minus V square by C square, where what is C square? V square. V is already already described here, that is the V is the relative velocity between S and S dash. But what is C? C is the velocity of light, be clear. C is the velocity of light. It is Vx dash and C square. X dash is the distance covered, and again T2 is equal to T2 dash plus Vx dash. When we take difference T2 minus T1, this will be cancelled out, and we will get T2 dash minus T1 dash upon 1 minus V square by C square under root. Then this one is delta T and this one is delta T dash. So, delta T, it has only been replaced by delta T. So, T2 minus T1, that is delta T, and here T2 dash minus T1 dash, that is delta T dash. So, delta T is equal to delta T dash over 1 minus V square CS under root. Clear? Now, here you be clear, be attentive. This factor 1 minus V square CS square, it is always less than 1. 1 minus something will be always less than 1. It is clear. एक से कुछ भी हम घटाएंगे, एक से कुछ भी घटाएंगे, आधा घटाएं, 0.1 घटाएं, 0.2 कुछ भी घटाएं, तो वो जो क्वांटिटी आएगी, नंबर आएगा, वो दैट विल बी लेस देन 1. सो it is clearly less than 1. This factor is less than 1. This less than 1 is
is multiplied by this is equal to this. So this must be greater than this. This into this is equal to this. Suppose this 6 into half, what is it? It is 3. 6 into half is equal to 3. So 6 is definitely greater than 3. This is less than 1. This is half is less than 1. So if we multiply this into this, so it is less than 1. So it will be greater than this. So 6 is greater than 3. 6 is greater than 3, isn't it? So it is very clear that this factor is less than 1. So less than 1 is multiplied by delta t, and that is equal to delta t dash. So this must be delta t is greater than delta t dash. Clear? Delta t जो है सो delta t dash से बड़ा हुआ. So as it is clear, this is always less than 1. I have written here also. So delta t is greater than delta t dash. What is delta t? Delta t is the time difference in static one, and it is in moving frame, and this is in static frame, and this is in moving frame. What it means? This result means that time interval measured by the observer in stationary frame is longer. Stationary frame is longer than the moving frame. Time interval measured in stationary frame is longer than that very time span measured in moving frame. So what does it mean? That the time will run slower in the moving system. दो इंसिडेंट हुआ, आप ठीक समझिए, दो इंसिडेंट हुआ यहाँ, इसमें टाइम इंटरवल लिया गया स्टेशनरी में और एक मूविंग में. तो स्टेशनरी का जो टाइम आया वो डेल्टा टी आया. मान लीजिए सपोज ऐसी बतला रहे हैं, मान लिया 6 सेकेंड्स, और उसी टाइम इंटरवल का रिकॉर्ड हुआ किसमें? मूविंग फ्रेम में. मूविंग फ्रेम में रिकॉर्ड किया 5 सेकेंड. सेम इंसिडेंट्स यहाँ हुआ तो स्टेशनरी में इतना आया 6 सेकेंड, अब मूविंग में 5 सेकेंड. व्हाट डज इट मीन? दैट द क्लॉक विच इज मूविंग is running slower than the fixed one. So slow down होता है. Time is slowed down. किसमें? In moving system. मूविंग सिस्टम में टाइम जो है स्लो डाउन हो जाता है, धीमा हो जाता है. तब नहीं 5 सेकंड हुआ, एक ही इंटरवल. इसमें रिकॉर्ड हुआ 6 सेकंड, इसमें रिकॉर्ड हुआ 5 सेकंड. क्लियर? दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन. दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन. इसी को टाइम डायलेशन बोलते हैं. ए मूविंग क्लॉक रन्स स्लोअर देन द स्टेशनरी क्लॉक. स्टेशनरी क्लॉक से स्लो रन करता है. इसका उदाहरण हम दे रहे हैं. देखिए, टू क्लॉक्स सिमिलर क्लॉक्स, आइडेंटिकल क्लॉक्स हैज आर टेकन. वन इज फिक्स्ड इन ए स्पेसशिप एंड द अदर रिमेन ऑन द अर्थ. है ना? एक स्पेसशिप में फिक्स किया गया, एक अर्थ पर रह गया, उड़ा. ठीक एग्जैक्टली 10 बजे ये उड़ा संडे को. हाँ, कौन? नंबर 1 जो स्पेसशिप में था. अरे सिमिलर है दोनों. और 1 सप्ताह के बाद लौटा. 1 सप्ताह के बाद उसी टाइम पर लौटा. संडे को गया, संडे को आया. है ना? ऐसी सब बतला रहे हैं कि तो यहाँ पर देखा कि ये संडे नहीं मंडे हो गया. संडे नहीं मंडे हो गया, एक दिन ज़्यादा हो गया. कहाँ? अर्थ पर. ये बताने के लिए बोले. इतना डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन ओनली टू एक्सप्लेन द थिंग क्लियरली हम इसको ले रहे हैं कि 6-7 दिन इसमें गुजरा. किसमें? स्पेसशिप में. यहाँ 8 दिन हो गया. ये किससे हो गया?
हाँ, तो स्लोअर, टाइम गोज स्लोअर इन द मूविंग फ्रेम। ये मूविंग फ्रेम है स्पेसशिप वाला, ठीक है। इसको और एकदम प्रैक्टिकल किया गया, घड़ी से एटॉमिक क्लॉक से इसको किया गया। हम तो बहुत बड़ा डिफरेंस ले लिए ना, इतना डिफरेंस होता नहीं है, लेकिन एटॉमिक क्लॉक से किया गया तो पाया गया देयर आर डिफरेंस। और किया गया बायोलॉजिकली, बोटेनिकली, एकदम दो इक्वल हाइट के पौधे लिए गए, एक ही तरह का, एक ही चीज़ का पौधा लिए, एकदम एग्जैक्टली इक्वल हाइट। वन इज फिक्स इन ए स्पेसशिप एंड वन रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक स्पेसशिप में जो गया वो एक हफ्ता के बाद आया, वो रिटर्न हुआ फिर वहाँ, और ये यहीं पर रह गया। देखा गया क्या कि जो अर्थ पर था पौधा वो ज़्यादा लंबा है। क्लियर, अर्थ पर जो पौधा है वो ज़्यादा लंबा है, तो इसका क्या माने हुआ, ये ज़्यादा बढ़ गया और ये कम बढ़ा, तो इसके लिए स्लो डाउन था। जो स्पेसशिप में गया वो मूविंग सिस्टम, वो टाइम इज स्लो डाउन, टाइम एकदम इक्वल है यहाँ वहाँ, लेकिन इसमें टाइम रिकॉर्ड हुआ तो दूसरा, ये ज़्यादा लंबा बढ़ गया और ये कम बढ़ा। सो दिस इज टाइम डायलेशन। और एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। 2 क्लॉक्स हो गया। ट्विन ब्रदर्स में दिया जाता है, एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं लेकिन दिया जाता है। जब टाइम डायलेशन हम लोग बताते हैं कि दो एकदम जोड़ा भाई थे, एक ही जैसा, one went in a spaceship, and the velocity of a spaceship was comparable to the velocity of light. साधारण लाइट स्पीड से ही एरोप्लेन जाता है, जाएगा है, उसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। यहाँ से तो रोज़ जाता है, उड़ के अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, बॉम्बे जाता है, बंगलोर जाता है, लेकिन देयर विल बी नो डिफरेंस एट ऑल। विथ ट्रीमेंडस स्पीड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर हम जाएं, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट का वेलोसिटी कोई एक्वायर नहीं कर सकता, लेकिन कंपेरेबल होता है। कंपेरेबल मैंने कितना, आधा, 1/4 वगैरह। हाँ, जैसे किसी के पास 1 लाख रुपया है और किसी के पास 10 रुपया है, तो कंपेरेबल हुआ? नो, कंपेरेबल नहीं हुआ। अगर 1 लाख के है तो किसी दूसरे के पास 10,000 है या 20,000 है तो कंपेरेबल होगा। उसी तरह 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट है। हाँ, तो 3 लाख किलोमीटर, तो 1 लाख किलोमीटर हो सकता है, 50,000 किलोमीटर पर सेकेंड हो सकता है। सो दैट विल बी कंपेरेबल। तो कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। एक भाई जो है स्पेसशिप में चला गया और 1 हफ्ता के बाद आया, ठीक संडे को उड़ा और नेक्स्ट संडे को फिर लैंड किया अपने घर के सामने लैंड किया। तो दौड़ करके गया, अपना ट्विन ब्रदर था ना, वो गया तो देखा घर के पास पिताजी हैं, पिताजी को पकड़ने, ओ पिताजी हम आ गए लौट के ऊपर। तो वो जो एक्चुअली वो पिताजी नहीं था, उसका भाई था। वो बोला नहीं हम तो पिताजी नहीं, हम तो तोर भाई हैं, पिताजी कब गुजर गए। तो वो जो आया 1 हफ्ता स्पेसशिप में, इसको ठीक समझिए, स्पेसशिप में कितना गुजारा, ओनली 1 वीक। उसमें क्या चेंजेज आया, सिर्फ थोड़ा दाढ़ी उड़ी बढ़ गया और कोई चेंजेज नहीं आया, सिर्फ दाढ़ी उड़ी बढ़ा एज इट इज। इट वॉज ओनली 1 वीक फॉर हिम। और यहाँ उसका 30-35 साल गुजर गया, पिताजी डेथ कर गए, अपने बूढ़ा हो गया। तो ये समझाने के लिए किया जाता है, एक्चुअली डिड नॉट इट हैपन, बट इट कैन हैपन लाइक दिस। इट कैन बाय द टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन में ऐसा संभव है ना। ऋषि मुनि के बारे में हम सुनते हैं ना कि ऋषि मुनि इतना देर थी में जिंदा रहते थे, 1000 साल, 10,000 भी। हाउ हम तो उम्र 100 साल में हम लोग हुए, इतना दिन कैसे जिंदा रहते थे। एक्चुअली व्हाट हैपन फिजिकली, देखो फिजिक्स में कि एक्चुअली मेंटली दे रोम ओवर द यूनिवर्स, दौड़ते थे, कभी वो यूनिवर्स में उस में गए, कभी उसमें गए। फिजिकली नहीं गए, मेंटली गए, और मेंटल का असर पड़ता है शरीर पर। सो दे रिमेन्ड अलाइव फॉर 1000 ईयर। हम लोग वी कैन नॉट ड्रीम ऑफ इट। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, 105, 110, और लोग हज़ारों हजार साल जीते। एक एग्जाम्पल हमारे मित्र अरविंद
ने दिया था। बहुत अच्छा वो टाइम ट्रेवल के बारे में उन्होंने लिखा था। लेकिन यहाँ भी आ रहा है टाइम ट्रेवल से कि एक राजा गया अपना लड़की की शादी के लिए, ब्रह्मा जी के लोक में चला गया। ब्रह्मा जी के लोक में गया, वहाँ जाए उतना दूर जाने में उसको वो लाइट का कंपेरेबल स्पीड में उसको जाना पड़ा। तो वहाँ जाके खोजबीन कर रहे हैं, तो जहाँ गया वहाँ देखा कि उसका पिताजी आया था, राजा था। तो उनको बोला कि नहीं, अरे कई हजार वर्ष हो गए, आपकी पुत्री तो मर भी गई। वो खोजने जो गया तो बोला, वहाँ पता लगाया, वो था उन लोग का सोर्स ऑफ नॉलेज कि आपकी पुत्री तो मर भी गई, कई हजार साल बीत गया, आप आज हो रहे हैं। तो कहने का मतलब वो इतना स्पीड से गया कि उसको कुछ नहीं लगा, देयर वॉज नो चेंज, राजा में कोई चेंजेस नहीं आया। उसको लगा एक दिन में हम आए, 2 दिन में आए, और वहाँ हजारों साल बीत गया वहाँ अर्थ पर, और उसकी पुत्री मर भी गई, और भी कितने लोग ही हो गए। तो दिस क्लिपिंग वाज गिवन बाय अरविंद। मेनी थैंक्स टू अरविंद। तो मैं बहुत थैंक्स देता हूँ अरविंद को, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का क्लिपिंग आपने दिया। इस तरह का क्लिपिंग का नाम सतीश ने दिया। तो उसको उससे बहुत नॉलेज का विस्तार हुआ, हमारे भी नॉलेज का विस्तार हुआ, जो कुछ हम नहीं जानते थे वो जान गए। अब 5 मिनट हम बोलेंगे अपना जो ग्रुप है। तो मेरा ग्रुप जो है हजारीबाग फ्रेंड। तो पहले ग्रुप को मैं नमस्कार करता हूँ, अपने ग्रुप को। और ग्रुप में एक मुखिया होना चाहिए। तो मुखिया हम लोगों ने बना दिया है। मुखिया हम लोग के हैं बनवारी अग्रवाल। तो बनवारी अग्रवाल हम लोग के मुखिया हैं, और ही उनका नाम हम रख दिए हेड मास्टर। तो ही वर्क्स एज हेड मास्टर। वो बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट आदमी भी हैं, उल्टा पुल्टा देखने से डांटते भी हैं। जस्ट लाइक ही एक्ट्स आवर हिंदू स्कूल हेड मास्टर नागेश्वर बाबू। तो अरविंद को बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कर्तव्य को निभा रहे हैं। एक और मेंबर हमारे हजारीबाग फ्रेंड में ज्वाइन किए हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत ही धन्यवाद दे रहा हूँ। ऑल्दो ही इज़ सीनियर टू अस, आर के प्रसाद is at least 4 years senior to us, but he has joined to our group, and time to time we get his advice because he is senior most person, and many thanks to him. हमारा जो ग्रुप है, आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट। नंबर 1 आई एम फॉर्चुनेट, अपने को समझते हैं। हाँ, यहाँ मैं सही नहीं बोल रहे हैं, अपने को समझते हैं कि नंबर 1 आई एम फॉर्चुनेट कि आई रिमेन द स्टूडेंट ऑफ हिंदू हाई स्कूल। और दूसरा, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे जो मित्र हैं, कम से कम अभी जो मित्र हैं ग्रुप में, सब हाईली स्कॉलर, हाँ, हाई स्कॉलरली पीपुल हैं, अब बहुत हाई पोस्ट पर रहे हैं। अरविंद कुमार बहुत हाई पोस्ट पर रहे हैं। सुधीर श्रीवास्तव जो एकदम CMIR के पर थे, एकदम उसके उच्च पद पर। वो तो हमारे लिए, हिंदू स्कूल के लिए भी एक गौरव की बात है, हमारे सर्कल के लिए एक गौरव की बात है। ये भी बहुत बड़े इंजीनियर रहे हैं। RK प्रसाद माइनिंग इंजीनियर, बहुत बड़े माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, हमको भेजा है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हुम। मैं उसे पढ़ नहीं पाया हूँ, 2-4 पन्ना पढ़ा हूँ, कुछ और मैं पढ़ लूँगा तब उनसे फिर मैं डिस्कशन करूँगा। और भी हैं बहुत, सतीश प्रसाद हैं, बहुत हाई पोस्ट SBI के बहुत बड़े मैनेजर, पटना में वहाँ से रिटायर हुए। वी आर ऑल रिटायर्ड पर्सन। अरुण कुमार सिन्हा, HOD मैथमेटिक्स, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। इस तरह से जितने भी हैं, आई एम फॉर्चुनेट कि इस ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ और लाभान्वित हो रहा हूँ। और मैं सजेस्ट कराऊँगा कि कभी कभी
छोटी मोटी भी बात हो जाती है तो उसको वेव आउट कर देना चाहिए। हाँ, बचने वाली बात को वेव आउट करना चाहिए, जोक वगैरह में हो जाता है, बट वी मस्ट ट्राई टू पुट इट either it is clipping or direct, so some serious thing जिसमें हम लोग का नॉलेज का ब्रोडन हो, जिसमें विस्तार हो, नॉलेज का बढ़ोतरी हो। और पुनः मैं आप सबों को दशहरा दुर्गा पूजा की शुभकामना देता हूँ और धन्यवाद।